We've seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. Hallelujah. Come on. This morning, Lord Jesus, we want you to come and wake us up, oh God. Wake your people, wake your city, Lord. Hallelujah. Come on, let's sing it. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Come on. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival, the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God of revival. Come on, come awaken your people. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the
chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Ooh. Come on, wherever you are in your homes, lift your voice and sing a new song to Jesus. Hallelujah. God of revival, you're the God of revival. Yes, awaken us, Lord, awaken us, Lord. Yes, come on, lift your voice. God of revival. You're the God of revival. The God of revival. Yeah. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Now we worship you, God. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Things are possible. Hallelujah, Lord. All things. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं मसीह यीशु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम में आपका अभिवादन करता हूं। इस वक्त हम कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पिछले 9 हफ्तों से लॉकडाउन में हैं और हमारी आशा है कि इस बीच आप और आपका परिवार ठीक रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने आपकी आत्मा में आपको उत्तम भोजन दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आराधना का आनंद लिया होगा और आप तैयार हैं आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पाने के लिए। साथ ही बाद में हम कुछ समय लेकर आपके अर्पण और दशांश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं एक बार और आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि अर्पण या दशांश हम सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि हम किसी कलीसिया जाते हैं। हम दशांश इसलिए देते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। ये आपके और परमेश्वर के बीच के व्यक्तिगत रिश्ते की बात है। तो हम आशा करते हैं कि इन कठिन समयों में भी आप परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसके अनुसार अपने दशांश को देंगे और प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा, उसके लिए आपको आशीषित करेगा। इसीलिए ये सभा ख़त्म होने से पहले मैं आपके अर्पण और दशांश के लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। हमारी कलीसिया में पिछले 4-5 सालों से हमने इस बात को देखा है कि हमने हर महीने लोगों का बपतिस्मा किया है, लेकिन इस कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते ये बात अभी हो नहीं पा रही है। इस बात में कुछ रुकावट आई है।
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, हम फिर से बपतिस्मा देना शुरू करेंगे। तो अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा मानते हुए बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कलीसिया के वेबसाइट पर जाकर हमें उसके लिए ईमेल लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, हम आपको बपतिस्मा दे सकें। और मेरे लिए ये आदर की बात होगी कि आपको मैं स्वयं बपतिस्मा दूँ। बुधवार शाम की जो सभा होती है, जो लाइव सभा होती है, उसमें हमने बहुत ही आनंद का समय बिताया और जो हमने पहले कभी नहीं किया था, वैसा कुछ हमने किया। लगभग 3 घंटे का समय हमने परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को सीखने में बिताया। बहुत ही गहराई की बातें, हृदय की बातें हमने उस सभा के दौरान आपके साथ की। तो हम आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा है और आपने उससे आशीष पाई है। उस वीडियो के दौरान हमने परमेश्वर जिस ताल के हिसाब से हमें चला रहा है, उसके विषय में बातें की थी। परमेश्वर जिस तरह से काम करते हैं, उसकी एक ताल होती है और ये ताल प्रभु ने दुनिया की सृष्टि के समय से जो है उसको इस्तेमाल किया है और उसके अनुसार वो काम करते रहे हैं। अगर आप समंदर की लहरों को देखें तो उनके उठने और गिरने में भी एक ताल है। अगर आप बादलों को देखें तो भले ही एक साफ मौसम वाला दिन हो जहाँ धूप निखरी हो, या एक काले बादलों से भरा हुआ दिन हो, या बहुत ही तेज़ हवाओं वाला तूफ़ानी दिन क्यों ना हो, बादलों के यहाँ से वहाँ हिलने में भी एक ताल होती है। जिस तरह पृथ्वी सूरज के आगे पीछे घूमती है, उसमें भी एक ताल होता है। हमारा परमेश्वर ताल का परमेश्वर है और जब परमेश्वर का कोई बेटा या बेटी उसके इस ताल को समझ लेते हैं, तो वो एक ऐसे रीति से काम करते हैं जिसमें समय बहुत ही ज़रूरी होता है। हर चीज़ के करने के लिए एक समय होता है और जब कोई परमेश्वर के इस ताल को समझता है, तो वो उस ताल के अनुसार, उस समय के अनुसार काम करता है। ये ताल ऐसी है जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छे नतीजे नज़र आएंगे। इस ताल के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। अगर कहीं बीच में कोई समय हो जहाँ खामोशी हो, तो उस कारण आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रभु के ताल के अनुसार चल रहे हैं। साथ ही आप ये भी जानते हो कि हमारा परमेश्वर क्रम, ढांचों और प्रणालियों का परमेश्वर है और इन बातों को जानने के बाद आप उसी ताल का इस पृथ्वी पर मानो नकल करते हो और उस कारण आपको बेहतर नतीजे, अच्छे नतीजे मिलते हैं। और जब दुनिया भर के सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों घटी या कुछ घटनाएं क्यों नहीं घटी, जब लोग इन बातों को लेकर चिंतित हो रहे होते हैं, वे जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रभु के ताल को समझते हैं। हाँ, उस ताल के अनुसार काम करते हैं और बेहतर नतीजे लेकर आते हैं। तो आज की सुबह मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप भी प्रभु के उस ताल को समझें और उसके साथ जुड़ जाएं। तो पिछले रविवार जहां हमने बातों को छोड़ दिया था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम शाइजू है। मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। इस सेवकाई में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी आशा और प्रार्थना ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह से एक प्रेम के रिश्ते में पड़ जाएं। पिछले कुछ हफ्तों से जिस रीति से परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उन बातों के लिए और उन बातों से हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये ताल की बात है। हम उस ताल में आपको जोड़ना चाहते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था, उसके अनुसार एक वचन को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलें, तो पिछले हफ्ते हमने पहले अध्याय के 9 वचन से पढ़ना शुरू किया था। आज हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे। पास्टर, अगर आप मेरे लिए वचन पढ़ सकें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 10वां वचन। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे
तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। हम एक और बार इसे पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी आवाज़ को सुना। मैं कुछ देर इस वचन पर मनन करना चाहूँगा। पिछले बुधवार को मैंने आपसे बताया था, कहा था कि हमें जो है योजना करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितनी देर तक जो है सभा को जारी रखेंगे, लेकिन इसके बजाय हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है कि वो हमारी अगुवाई कैसे करते हैं। फिर भले हम 3 मिनट वचन सुने या 3 घंटे, पवित्र आत्मा जैसे आप इस वचन को सुनते हो उसके कारण आपके हृदय में काम करेंगे और बेहतर नतीजे लेकर आएंगे। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि किस तरह प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा था और वो किन परिस्थितियों से होकर गुजरे थे। हमने जाना कि प्रेरित यूहन्ना सारे चेलों में उम्र में सबसे छोटे थे और उस वक्त के रोमी शासक ने उन्हें गिरफ्तार करके पतमोस के टापू पर अकेला भेज दिया था। वहाँ भेजने से पहले उसे जो है उबलते हुए तेल में डाल दिया गया था। जब वो वहाँ से मरा नहीं तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे उस टापू पर भेज दिया गया और उस टापू पर प्रेरित यूहन्ना सामाजिक रीति से एक तरह से अकेला है। और हमने सीखा था कि किस तरह उस समय में दुश्मन ने ये कोशिश की कि यूहन्ना को जो है मानसिक रीति से तोड़ दिया जाए। दुश्मन चाहता था कि भावनात्मक रीति से यूहन्ना को पूरी तरह तोड़ दे, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर का ये दास उन समयों में प्रभु के साथ ऐसी मुलाकातें करता है, ऐसी बातों को पाता है जो बाइबल में दर्ज की गई हैं। जिन बातों को मैंने पिछले हफ्ते शुरू किया था, उन्हीं बातों को आज मैं गहराई में ले जाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और उसके बाद यूहन्ना प्रभु की आवाज़ को सुनने लगता है। इस एक वाक्य के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे समाज से अलग कर दिया था, वो अकेला था और जिस कारण से बनाया गया था उस उद्देश्य के विपरीत वो जीवन जी रहा था, अकेलेपन में जी रहा था। हमारी ज़रूरतें भावनात्मक भी हैं और इस समय वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। उसकी कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में था। उसे आश्रय की ज़रूरत थी, छाया की ज़रूरत थी, पर वो एक ऐसी जगह में है जहाँ ये बातें उपलब्ध नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने जिस रीति से बनाया है उसमें व्यक्तिगत रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय ऐसी परिस्थिति में था जहाँ इन व्यक्तिगत रिश्तों से ही उसे अलग कर दिया गया था। यूहन्ना एक ऐसे अकेलेपन से होकर गुजर रहा था जो बहुत ही गहरा था। उसका शरीर भी उन सारी बातों से अलग कर दिया था जिसकी उसे शायद आदत हो गई थी या कुछ दिनों पहले तक जो बातें उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। और वो जगह जहाँ पर उसे डाल दिया गया था, जहाँ दुश्मन ने उसकी हानि की योजना की थी, वही जगह उसके लिए बहुत बड़े फायदे की साबित हुई। मैं इस समय कुछ लोगों के ऊपर अभी भविष्यवाणी करता हूँ। आप में से कुछ लोगों को दुश्मन ने मानो एक कोने में दबा कर रख दिया है और दुश्मन ने शायद ये सोचा था कि इस परिस्थिति में इसका नाश हो जाएगा, इस परिस्थिति में ये शायद हार मान लेगा, इस परिस्थिति में शायद ये प्रभु से इनकार कर दे, पीछे हट जाए। लेकिन आप यहाँ खड़े हैं। जब आपका शरीर सताव से होकर गुजरता है, टूटेपन से होकर गुजरता है, तब आपने ये अनुभव किया कि परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी रीति से आप पर उंडेला गया जैसे आपने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो यीशु मसीह के हर एक संतान के पास आ रही है। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं और जितना ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं, उतना ज़्यादा
आप उससे प्रेम कर पाएंगे, आपकी कमज़ोरियों के बीच भी, आपके सारी चुनौतियों के बीच में। जब आपके शरीर को हर रीति से परखा जाता है, जब आपके भावनाओं को हर रीति से परखा जाता है, जब मानसिक रूप से आप प्रताड़ित किए जाते हो, जब आपके आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, जब आपको आपके शारीरिक सुरक्षा की जो है हानि हो रही है, उस समय में प्रभु का अनुग्रह आपकी कमज़ोरियों के बीच आपके जीवन में जाहिर होने लगता है। इस समय आप शायद एक ऐसी जगह में हैं जहाँ परमेश्वर सबसे ज़्यादा आपके जीवन में नज़र आ सकते हैं। इस समय मैं एक दर्शन देख रहा हूँ और उस दर्शन में बहुत ही बड़े जो है फूल नज़र आ रहे हैं मुझको, जो बस खिलने को ही हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा इस बात को मुझे कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है। आप एक लंबे अरसे से मानो एक सूखेपन से होकर गुजर रहे थे, एक रेगिस्तान जैसा अनुभव हो रहा था। इस समय मैं प्रभु के अनुग्रह की घोषणा आपके जीवन पर करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप चीज़ों को जिस तरह आपके जीवन में खिलता हुआ देखेंगे। आप में से कुछ लोग शायद इस लॉकडाउन के बीच ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जिस लगन से, जिस आग से आपने प्रभु का पीछा करना है, उस तरह से आप कर नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ शायद आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसमें एक ठंडेपन को अनुभव कर रहे हैं। और अगर इन बातों से आपको परेशानी होने लगी है तो इस विषय पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेरित यूहन्ना के साथ आखिर हो क्या रहा है। प्रेरित यूहन्ना अब परमेश्वर की आत्मा से कुछ बहुत ही बड़ी बातों को पाने जा रहा था। वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा था जिसमें उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। तो अगर हम हमारी ओर देखें और आपको ऐसा महसूस होता है कि इस लॉकडाउन के बीच आपके लगन जो है थोड़ी धीमी पड़ गई है, नरम पड़ गई है, मैं इस वक्त नबूवत की रीति से कुछ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन परिस्थितियों में किन बातों ने प्रेरित यूहन्ना की मदद की होगी। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें होती हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिससे वो सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। हम में से कुछ लोग अगर किसी उपवास के बारे में जानते हैं तो वो सिर्फ शरीर को भोजन से अलग रखने का विषय है। लेकिन प्रेरित यूहन्ना जिस प्रकार का एक रीति से उपवास कर रहा है, उसमें वो मनुष्यों से दूर था, साथ ही वो हर प्रकार की ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भी दूर था, उनसे भी उसका उपवास था। एक रीति से लोगों के साथ सामाजिक रीति से जो रिश्ते होते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इन सारी बातों से भी उसका उपवास हो रहा था। तो अगर हम एक रीति से देखें तो यूहन्ना क्या कर रहा है, वो अपने नाशवंत मनुष्य को रीति से भूखा रख रहा है। उसका नाशवंत जो स्वभाव है उसे भूखा रख रहा था। और जब ऐसा होता है कि हमारा शरीर भूखा होता है, तब हमारा आत्मिक मनुष्यत्व और भी ज़्यादा पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो कुछ लोगों को इन बातों को समझने में मैं मदद करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूहन्ना को इन बातों को देखने का अनुग्रह मिला हो। यूहन्ना ने अपने उपवास के कारण एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया है जहां वो परमेश्वर की आत्मा से चीज़ें पाने के लिए तैयार है। परमेश्वर की आत्मा से आने वाली बातें हमें याद रखने हैं कि परमेश्वर के सिद्धांत जो हैं वो किसी मनुष्य को देखकर काम नहीं करते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अभिषेक्त व्यक्ति हैं। अगर आपने शारीरिक रीति से अपने आप को शराब में मतवाला कर दिया है तो उस कारण से आपकी जो संवेदनशीलता है परमेश्वर की ओर से चीज़ों को पाने का, वो कम हो ही जाएंगी और आपके रिश्ते पर प्रभु के साथ फर्क पड़ेगा।
आप कितने ही गुणी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर शारीरिक भोजन को लेकर लालच है और अगर आप अपने शरीर को निरंतर खिलाते रहेंगे, तो परमेश्वर के साथ आप किस रीति से काम कर सकते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। यूहन्ना को जब आप देखते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने अपने मनुष्य होने के नाते जो ज़रूरतें हैं उनका इनकार किया है। सिर्फ भोजन का नहीं, बाकी चीज़ों में भी वो उपवास कर रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो सिर्फ भोजन से इनकार नहीं कर रहा, वो उसका जीवन ही अब उपवास का हो गया है। उसके जीवन के एक दिन वो उपवास कर रहा है ऐसा नहीं था, उसका जीवन ही उपवास का हो गया था। वो उसके जीवन की शैली बन गई थी। तो बात ये थी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने आप को भोजन से अलग नहीं रख रहा था, उसने अपने जीवन को ही अलग कर दिया था। और भले ही ये सारी बातें दुश्मन ने उसके विरोध में की थी, उसके नाश करने के लिए की थी, उसे हानि पहुंचाने के लिए की थी, उसी ने इस समय का मौके का फ़ायदा उठाकर उसमें से भलाई को उत्पन्न किया। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं परमेश्वर के वचन का एक और हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो हमें इसे समझने में मदद करेगा। उसके बाद हम फिर से इसी वचन की ओर वापस आएंगे और सीखेंगे कि हमारे आत्मा में जो हमें कमी लग रही है लगन में, उसको कैसे जीत सकते हैं। अगर आप मेरे साथ यहेजकेल की किताब उसका पहला अध्याय खोलें, यहेजकेल की किताब उसका पहला अध्याय। पास्टर जी, अगर आप पहला अध्याय पहले वचन से पढ़कर मेरी मदद करें। यहेजकेल का पहला अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ेंगे। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। तो यहेजकेल क्या कह रहा है कि वो बंदियों के बीच बैठा था। ये वो बंदी थे जो इज़राइल से पकड़ कर लाए गए थे, और वहाँ उनके बीच जब वो बैठा था तब स्वर्ग खुल गया और उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर के दर्शनों को पाया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे वचन को पढ़ें। दूसरा वचन, यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन। ठीक है, अब हम ध्यान दें जरा कि अब हमारे लॉकडाउन के जो है कुछ 9 हफ्ते हुए हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो पिछले 5 साल से बंधुआई में था, 5 साल से एक रीति से लॉकडाउन में था, सारी चीजें बंद थी। कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। क्या लिखा है कि यहोवा की शक्ति या यहोवा का हाथ, यहोवा की शक्ति या यहोवा का हाथ उस पर वहीं पर प्रकट हुआ है। मुझे ध्यान से सुने। देखिए, ऐसे ही 2 या 3 और भी वचन हैं जो यहेजकेल के विषय में लिखे हुए हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है। और उनमें से एक ऐसा है कि यहेजकेल एक बार जो अगुए थे उनके साथ बैठा हुआ था, और जब वो उनके साथ बैठा हुआ था तब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर प्रबल होता है और वो आत्मा में उठा लिया जाता है। एक और जगह पर ऐसा लिखा है कि 7 दिनों तक यहेजकेल जो है बंदियों के साथ बैठा रहा। 7 दिन तक वो उनके साथ बैठा रहा, कुछ नहीं कर रहा था, उनके साथ बैठा हुआ था। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि वो कितने कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, बड़ी ही निराशाजनक परिस्थिति उनकी थी। वो लोग बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहे थे, कठिन समय था उनका, लेकिन इसके बीच भी वो बैठे हुए थे। 5 साल 7 दिन, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग मनोस्थिति, अलग अलग भावनाएं, इन सारी चीज़ों के बीच आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो, यहेजकेल को देखते हो, जो इन सारी चीज़ों के बीच भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। मुझे याद नहीं कि आपको याद है कि नहीं कि पिछले हफ्ते मैंने जो बातें कहकर ख़त्म की थी, मैंने आपसे कहा था कि उन्हीं बातों में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे बातें कर रहा था कि जो आत्मिक युद्ध हैं उनके समय के विषय में, उसी विषय में हम इस बुधवार को भी सीखेंगे और थोड़ी और बारीकी से सीखेंगे कि किस तरह उन युद्धों के बीच भी आप प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रह सकते हैं। पहला अध्याय और 3रा वचन कहता है कि यहेजकेल जो है प्रभु के बड़े सामर्थी हाथ के नीचे था, प्रभु का हाथ उसके ऊपर था।
प्रभु का हाथ वहीं पर उसके ऊपर था। प्रभु के लोगों, ध्यान से सुने। बाइबल बताती है कि जब मरियम जो यीशु मसीह को अपने गर्भ में लेकर चल रही थी, मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे होगा। उसके हृदय में शक नहीं था, शंका नहीं थी, पर वो जानना चाहती थी कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे ये बातें होंगी। उसके अंदर प्रभु के कामों को जानने की जो दिलचस्पी थी, उसको लेकर उसने सवाल किया कि कैसे ये असंभव सी बात जो है पूरी होने जा रही है। और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, ये बातें तब होंगी जब तू परम प्रधान के छाया में निवास करेगी, वहाँ बनी रहेगी। देखिए, कुछ लोग हम में से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु का हाथ हमारे जीवन पर आ जाए, और दूसरा विकल्प ये होगा कि हम प्रभु के हाथ के नीचे बने रहे, निवास करें। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब हम उसके करीब जाते हैं, वो हमारे और भी करीब आता है। देखिए, आप या तो अपना जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रह सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, आपकी जो दिनचर्या है आप उसको कर सकते हैं, और हृदय में इच्छा रख सकते हैं कि किसी दिन परमेश्वर का हाथ किसी तरीके से आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी परिस्थिति के बावजूद, आपके लॉकडाउन के बावजूद, आपके बंधुआई के बावजूद, या आपके अकेलेपन के बावजूद, आप परमेश्वर की आत्मा से कुछ इस तरह जुड़े रहें कि परमेश्वर का हाथ स्वयं आपके जीवन पर आ जाए। याद रखें, जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर आता है, तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। जब ऐसा होता है तो आप चीज़ें देखना शुरू करते हो, परमेश्वर की चीज़ों को देखना शुरू करते हो। इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि सुन, मैंने तुझे इज़राइल के लिए एक चौकीदार, पहरेदार नियुक्त किया है। तो ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को एक महान अनुग्रह के स्थान पर, एक महान अभिषेक के स्थान पर नियुक्त करते हैं? ये इसलिए क्योंकि इससे पहले कि उनकी आंखें खोली जा सकती कि वो परमेश्वर के दर्शनों को देखते, इससे पहले कि उनके कान खुल जा सकते कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते, उनके बंधुआई के समय में, उनके जो है अकेलेपन के लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने अपने शरीर को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया है। मैं नहीं जानता मैं किसकी आज मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी मैं मदद कर रहा हूँ तो एक कमेंट ज़रूर लिख कर भेजें। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ परमेश्वर किसी से बातें कर रहे हैं इस समय में भी, इस बंधुआई के समय में भी, इस लॉकडाउन में भी, कि आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीनता में लेकर आएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेंगे और आप देख पाएंगे उन चीज़ों को आत्मा में जो किसी और ने नहीं देखी हैं। परमेश्वर के लोगों, क्या हम अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर आ सकते हैं जहां भले ही बातें हमारी सहूलियत के अनुसार हो न हो, हमारे बंधुआई के बीच भी, हमारे जो है लॉकडाउन के बीच भी, हम ऐसा अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु के आत्मा के अधीनता में लेकर आए कि परमेश्वर का हाथ स्वयं हमारी ओर आकर्षित हो जाए। शरानामासी एंठे देराबा। परमेश्वर एक अंतिम दिन की जागृति के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो के द्वारा। परमेश्वर ऐसे अग्नि से भरे हुए लोगों को तैयार कर रहे हैं जो इन दिनों में अपने शरीर को जो है परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में लाने के लिए उसे प्रशिक्षित करेंगे, और उसका नतीजा ये हो कि परमेश्वर का हाथ उनकी ओर आकर्षित हो जाए। तो जैसे मैंने आपसे बताया था, मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों आपको एक कमी सी महसूस हो रही है आपके आत्मिक जीवन में। अगर आप अपने जीवन का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें तो आपको ये समझ आएगा कि इस लॉकडाउन के समय में जब बहुत सारा समय हमें दिया गया है, हमारे पास उपलब्ध है, इतना समय आपके पास होने के बाद अब आप एक जगह में फंस गए हो। सोशल मीडिया ने मनोरंजन के लिए, बाकी मीडिया ने मनोरंजन के लिए कई साधन हमें जो है आसानी से उपलब्ध करा दिए हैं।
अब मनोरंजन के साधन ढूंढने के लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे फ़ोन्स पे, हमारे लैपटॉप्स पर हमें उपलब्ध किया गया है। सब कुछ हमारे टीवी के ऊपर उपलब्ध है और कई इलेक्ट्रॉनिक जो साधन हमारे पास है उनके द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही हैं। हम इन सारी बातों से घिरे हुए हैं, इस तरह कि अब हमें इन बातों को ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। दुनिया अब हमारे घरों में आ गई है। मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कार्यक्रम हमारे पास आ रहे हैं मनोरंजन के, उनकी बात नहीं कह रहा, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हम में से कई लोग जब घरों पर बैठे हैं, हमने अपने शरीर को जो है भोजन की बहुत सारी लालसाएं दे दी हैं। मैं चाहता हूँ हम सब देखें ज़रा ध्यान से कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पास्टर, अगर आप मेरे लिए यहेजकेल की किताब उसका 8वां अध्याय पढ़ दें। यहेजकेल 8वां अध्याय पहले वचन से। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। सभी लोग वहां साथ बैठे हुए थे, लेकिन प्रभु का हाथ, उसका सामर्थ सिर्फ इस एक व्यक्ति पर उतर कर आता है। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन अगर मैं उस जगह होता तो इस बात से मुझे बहुत परेशानी होती कि हम सब वहाँ बैठे हैं, हम सब एक साथ वहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद परमेश्वर का हाथ सिर्फ इस एक व्यक्ति के ऊपर क्यों उतर कर आ रहा है। यही बातें हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं। कई लोग थे जो बंधुआई में थे, लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन हजारों लाखों जवानों में जो बंधुए थे, उन सभी के बीच भी इनका जीवन अलग था। इनका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित था। तो ध्यान दें कि इस लॉकडाउन के मौसम में शायद हम जितना हमें खाना चाहिए उससे कई ज़्यादा भोजन कर रहे हैं। मानो एक तरीके से हमारे अंदर जो अनुशासन है उसकी कमी हो गई है। हमें जितने नींद की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा समय हम सोते हुए बिता रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम अपने शरीर को खिला रहे हैं, उसे और तृप्त कर रहे हैं, और इस कारण हमारा शरीर जो है हमारी आत्मा से ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो अगर आपने इस बात को अपने जीवन में पाया है, देख रहे हैं आप कि आप उस तेजी से परमेश्वर के पीछे नहीं दौड़ पा रहे हैं, उस ऊंचाई में परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं उड़ पा रहे हैं जिसमें आपको उड़ने की इच्छा है, तो आपने इस बात को ढूंढना है, ध्यान देना है कि क्या मैंने अपने शरीर को अपनी आत्मा की तुलना में ज़्यादा खिलाया है, उसे ज़्यादा तृप्त किया है। आप एक बार परमेश्वर का वचन सुनते हो, लेकिन आप पूरा हफ्ता उस वचन पर मनन करते हुए समय नहीं बिताते, क्योंकि जो वचन आपने सुना है वो आपके आत्मा में पूरी तरह बस जाए, इस बात के लिए समय लगता है, उसमें समय लगता है। इसीलिए हमें उस पर मनन करना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस पर दिन और रात मनन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार सुबह के समय अकेले थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि पूरे हफ्ते में हमने शायद 1 या 2 बार ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय अलग किया है, उसके वचन के साथ समय बिताया है, और बाकी समय हमने केवल अपने शरीर को बलवंत किया है, उसी को खिलाया है। ऐसा करने से आप देखें कि संतुलन बिगड़ जाता है। आपका शरीर आपकी आत्मा से ज़्यादा प्रबल हो जाता है, भारी हो जाता है। इसीलिए अगर हम दानियल को देखें तो बंधुआई के बीच भी वो इतना जो है उसके अंदर लगन थी कि अपने प्रार्थना के जीवन को लेकर उसने कभी समझौता नहीं किया। उसके सारे ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के बीच भी उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो अपने शरीर के नाशवंत जो ज़रूरतें थी उनको वो पूरा नहीं करेगा। उसे राजा ने जो है दाखरस देने का निर्णय किया, उसने उसे नहीं लिया। राजा का भोजन खाने से उसने इनकार किया। लोगों ने उससे कहा, देखो अरे सब लोग यही कर रहे हैं। दानियल ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। दानियल और उसके दोस्तों ने एक अलग ही स्तर अपने लिए कायम कर लिया था। उन्होंने अपने लिए अलग ताल तय कर ली थी।
उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की ताल से जोड़ लिया था। मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति, जो कोई भी इस समय इस वचन को सुन रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये बातें संभव है। अगर आप और मैं इसकी इच्छा करें तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए विश्वास योग्य है। ये जवान लोग, जब इन्होंने परमेश्वर से दर्शनों को पाना शुरू किया था, उनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, वो युवा थे, वो जवान थे। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा पवित्र आत्मा हम में से कईयों को एक न्योता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आओ, मेरे अंदर के कमरे में आओ और मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखाऊंगा जो दूसरे नहीं देख रहे। मैं तुम्हें वो बातें दिखाऊंगा, सुनाऊंगा जो दूसरे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। ध्यान से देखें, हम फिर से प्रकाशित वाक्य की तरफ बढ़ेंगे। पहला अध्याय कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। अब आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन, इस बात का जो प्रकाशन है, इस बात का जो प्रगटीकरण है, कईयों ने अलग अलग रीति से लगाया है कि प्रभु का दिन क्या है। विशेष करके प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के कारण कई लोगों के अंदर जो है उनके विचारों में मतभेद आए हैं। लोगों ने अलग अलग रीति से इस अध्याय के मतलब को निकाला है, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने जिस रीति से प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा है, उसके कारण उसके प्रकाशन को लेकर, उसके प्रगटीकरण को लेकर लोगों के अंदर बड़े ही जो है विवाद रहे हैं। लोगों के विचार अलग अलग रहे हैं उसके विषय में। जो सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित समझ लोगों की यह है कि प्रभु का दिन यानी इतवार का दिन कि जब हम लोग मिलते हैं, साथ में आराधना करते हैं, या वो दिन जब प्रभु ने उसके सारे काम से आराम किया, या वो दिन जब प्रभु जो है मृत्यु से पुनरुत्थान हुए थे और उस दिन हमने आराधना करनी है, तो उसे वो प्रभु का दिन कहते हैं। दूसरा विचार ये है कि शायद शबत का दिन जो है वो प्रभु का दिन है, और क्योंकि कई लोग शबत के दिन को इतना प्रेम करते हैं, वो लोग जो है दूसरे जो कहते हैं कि प्रभु का दिन इतवार का दिन है, उस बात के लिए उनका जो है ठट्ठा करते हैं, मजाक बनाते हैं, और ये दो विवाद जो है निरंतर चलते रह रहे हैं। तीसरा विचार इसके विषय में यह भी है कि प्रभु का दिन यानी कि वो दिन जब प्रभु न्याय करेंगे। अगर हम यशाया की किताब को पढ़ें तो उसके अनुसार प्रभु का दिन यानी कि वो दिन जब प्रभु जो है प्रकट होंगे और वो न्याय करेंगे। आप उसके आगे देखते हो कि उसके बाद जो है वो सताव के दिन आएंगे, पीड़ा के दिन आएंगे, और ये सारी बातें लगातार चलती रहती हैं। आज की सुबह हमारा ध्यान इन बातों पर नहीं है, पर इस बात पर है कि यूहन्ना के जीवन का वो एक समय था जब वो परमेश्वर की आत्मा में खो गया था या परमेश्वर की आत्मा में पाया गया था। जहाँ वो पूरी रीति से परमेश्वर की आत्मा के काबू में था। वो एक दिन, उस दिन जब उसने पूरी रीति से अपने आप को अपने शरीर की लालसाओं से, उसके जो है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से अलग कर दिया था, उस एक दिन जब वो प्रभु से पूरी रीति से प्रेम कर पाया था, उस दिन जब वो प्रभु की आराधना करता हुआ पाया गया था। प्रभु के लोगों, आप जानते हैं कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन सा समय होगा जब परमेश्वर उनका हाथ हमारे जीवन के ऊपर मुक्त करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रभु की इच्छा हो कि वो उनका हाथ हमारे जीवन पर मुक्त करे, क्या हम उस समय पर उपलब्ध पाए जाएंगे? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप जिस किसी शहर से देख रहे हैं या जिस किसी देश से देख रहे हैं, सवाल ये है, क्या हम प्रभु के लिए उपलब्ध पाए जाएंगे? क्या हम आज उसके लिए उपलब्ध है? क्या हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा? हम परमेश्वर की आराधना करते हुए पाए जाएंगे? क्या हम उसके साथ संगति करते हुए पाए जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा है तो परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन के ऊपर आना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, जवानों, एक बात सुन लो ध्यान से कि कई चीजें हैं जो आपका ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों का ध्यान इस समय भटका हुआ है। हमारी पीढ़ी के कई लोग हैं जिनका ध्यान विचलित है, बटा हुआ है। कई लोग हैं जो संसार की चीजों में अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों पर दस्तक दे रहा है। कहता है, अगर तुम इस खटखटाहट को सुनते हो, इसकी आवाज को सुनते हो और दरवाजे को खोलते हो, कहता है मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। लेकिन
इससे पहले कि आप उस स्थान पर पहुंचे जहां परमेश्वर अंदर आए और आपके साथ भोजन करे, आपको उस जगह पर पहुंचना है जहां आप उसकी आवाज को सफाई से सुन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी आवाज सुनने में न चूके, अगर हम चाहते हैं कि हम उसके दर्शनों को देखने में न चूके, उसके लिए जरूरी होगा कि हम पहले उसके महान दाहिने हाथ के नीचे पाए जाएं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपको इस वचन के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले वो परमेश्वर के हाथ के नीचे पाया गया। धन्यवाद प्रभु। दूसरे, उसकी आंखें खोली गई, और तीसरी बात ये कि उसके बाद वो प्रभु की आवाज को सुन पाता है। एक बहुत ही बड़ी आवाज में, एक तुरही की आवाज में वो प्रभु यीशु मसीह के, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन पाता है। लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत उस दिन से हुई, उस एक दिन से जहां यूहन्ना कहता है, मैंने समय निकाला है, मैं प्रभु के साथ आत्मा में बना रहूंगा। फिर वो शाम का समय हो और वो सूरज को ढलता हुआ देख रहा हो, या वो सुबह तड़के जल्दी समय हो, या फिर भरी दोपहर का वक्त क्यों ना हो, वो ऐसा दिन था जब वो परमेश्वर की आत्मा में आ गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का हाथ एजेकियल के ऊपर आ गया। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, शमारियन तदार नमा। आज जैसे मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ, मेरी प्रार्थना ये होगी कि जैसे ये वचन आपके पास आता है और आप इसे सुन रहे हो, ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का हाथ किसी के जीवन के ऊपर आ जाए। शना दिया ठतारानमा से तेरे पे ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का हाथ इस वीडियो के द्वारा अंतिम दिनों के नबियों को तैयार करे। ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का हाथ इस अंतिम दिनों के लिए जागृति लाने वाले लोगों को तैयार करे। ऐसा होने पाए एक महान जागृति इस वीडियो के द्वारा स्थापित होने पाए। मुझे ये महसूस होता रहा है कि मुझे परमेश्वर इन अंत दिनों में जिस बेदारी को अपने लोगों पर मुक्त करने जा रहे हैं, उसके विषय में आपसे बातें करनी है। अगर प्रभु की इच्छा रही और प्रभु ने अनुमति दी तो उन बातों को मैं अगले इतवार आपके साथ बांटना चाहूँगा। मेरी आपसे विनती है कि अगले इतवार की सभा को देखने के लिए आप अपने हृदयों को पूरी तरह तैयार करके आएँ, क्योंकि पवित्र आत्मा एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि नहीं, कि पिछले 3 हफ्तों में जो भी संदेश मैंने आपसे बांटे हैं, उसका जो मूल संदेश है, वो एक ही तरीके का है कि प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोगों को उठ खड़ा कर रहा है। प्रभु रमादिया अंथलारिया थोरबो। मैंने अभी एक छोटा सा दर्शन देखा है। मैंने देखा एक जवान स्त्री जो है वो प्रार्थना कर रही है, और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आने वाले दिनों में युवा स्त्रियों को जो है एक महान बेदारी के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर औरतों का इस्तेमाल करेंगे इस बेदारी को लाने के लिए। परमेश्वर कई लोगों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ उनमें से कुछ लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं। ये संदेश जो हम सुन रहे हैं, ये वचन बहुत ही विशिष्ट है, और ये लगातार हमारे पास आ रहा है। पवित्र आत्मा कई लोगों से ये कह रहा है, आओ मेरे साथ अकेले चले आओ, आओ मेरे पास ऊपर की ओर आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो तुम्हारे मित्र नहीं देख रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसी बातें दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे अपने परिवार के लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर को भूखा रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारी बातों को जो तुम्हारा ध्यान मुझसे भटकाती है, उन्हें छोड़ दो। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को उनके पहले प्यार की ओर वापस आने का मौका दे रहा है। याद करें उन दिनों को जब आप परमेश्वर के घर जाने के लिए कितना उत्साहित होते थे। याद करें उन दिनों को जब बाकी सारे लोग देरी से आते, पर आप घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाते प्रभु के घर। याद करें उन दिनों को जब जहां आराधना के गीत बजते और आप तुरंत ही प्रभु के साथ जुड़ जाते। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि कुछ गाने बज जाते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रभु के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते। प्रभु यीशु मसीह
आज कुछ लोगों को एक गहराई के स्थान पर बुला रहे हैं। भले ही आपके अंदर प्रभु के लिए जो लगन थी आज वैसी ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने कभी आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया। मैं आत्मा में एक गीत को सुनता हूँ कि प्रभु का निरंतर कायम रहने वाला प्रेम कभी बदलता नहीं। उसकी करुणा, उसकी दया कभी भी खत्म नहीं होती। उसकी दया प्रतिदिन नहीं है, प्रतिदिन उसकी दया नहीं है। तेरी विश्वास योग्यता क्या ही महान है हमारे प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता क्या ही महान है। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसका प्रेम एक मजबूत चट्टान जैसा है। प्रभु हमें न्योता देता है। पतरस इसी बात को हमें याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम्हारे शरीर की लालसाओं से अपने आप को बचाओ, अपने आप को दूर रखो, क्योंकि यही लालसाएं जो है हमारे प्राणों के साथ युद्ध करती हैं। याकूब की पत्री में लिखा है कि हमारे बीच झगड़े इस कारण होते हैं क्योंकि हमारी लालसाएं, हमारे सुख विलास जो हैं वो हमारे ही अंगों में मानो भिड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को झगड़ों के बीच या विवादों के बीच पाते हो तो वो इस बात का चिन्ह है कि हमारे ही सुख विलास, हमारी ही आकांक्षाएं, लालसाएं हमारे अंगों के अंदर लड़ रहे हैं। हमारा प्रभु जो है एक निरंतर कायम रहने वाला प्रेम है, वो बहुत ही स्थिर प्रेम है। प्रभु भला है और कठिनाई के दिन में वो हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है। परमेश्वर के लोगों, जिस यीशु की सेवा हम करते हैं वो ऐसा है जिस पर निर्भर रहा जा सकता है। लेकिन क्या यीशु हम पर निर्भर हो सकते हैं, ये एक और सवाल है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर वापस लौट के आऊँगा, क्या मुझे यहाँ विश्वास नज़र आएगा? आज प्रभु का आत्मा मानो किसी के हृदय से जूझ रहा है, वो किसी के हृदय को खटखटा रहा है। पास्टर, अगर आप मेरे लिए कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ें। कुलुसियों का 3 अध्याय 1 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये कहती है कि हर वो व्यक्ति जो मसीह के साथ जिलाया गया है उसने स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करना है। ऐसी बातें जो मसीह की उपस्थिति में है, जहाँ पर मसीह है, खोज करना लिखा है। यानी कि ये एक तरीके से बहुत ही सक्रिय रीति से पीछा करना है। पीछा करना स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय चीज़ों का। आप और मैं जब पृथ्वी पर ही हैं, हमें सक्रिय रीति से स्वर्गीय बातों की खोज करनी है ताकि उन बातों को हम पृथ्वी पर देख पाएं, उन्हें ला सकें। आप जिस प्रकार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अलौकिक दर्शनों को, अलौकिक मुलाकातों को आपके जीवन पर मुक्त कर सके। जैसे आप सारे हृदय से इस बात की इच्छा करते हैं कि स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की चीज़ें इस पृथ्वी पर उतर आएं, परमेश्वर की ओर से वो अलौकिक चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन के ऊपर मुक्त किए जाएं। याद रखें कि हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक जीव हैं जिनके ऊपर एक शारीरिक कवच है, और आत्मिक होने के बावजूद भी हम बहुत सारा समय हमारे शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में, इस शरीर की इच्छाओं को तृप्त करने में बिता देते हैं। हम आत्मिक जीव हैं और इसीलिए हमें आत्मा के चीज़ों की खोज में रहना है। जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा है। वे लोग जो मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आत्मिक जीव हैं और जो आत्मिक होते हैं वो शारीरिक चीज़ों की खोज में नहीं रह सकते। आपकी इच्छाएं भी आत्मिक होनी चाहिए। मुझे कृपया करके मौका दें कि मैं आपको दिखा सकूं कुछ और देर कि आप कौन हैं और आपने किस रीति से कार्यों को करना है।
पास्टर, अगर आप मेरे लिए यूहन्ना का 3 अध्याय खोलें और हम 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ध्यान दें कि इस वचन की कई परतें हैं, और उन सारी परतों में आज मुझे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि वो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, वो शरीर की लालसाओं का पीछा करता है। लेकिन आप और मैं, हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हुए हैं। इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, हमने परमेश्वर की आत्मा से चीज़ों को पाया है, परमेश्वर की आत्मा ने हमें भरा है, और परमेश्वर की ही आत्मा ने हमें सामर्थ्य दिया है। यानी कि हम लोग जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, उनसे एक बहुत ही बड़ी अपेक्षा है, एक अलग अपेक्षा है कि हम किस रीति से काम करें। अगर आपके साथ इस वक्त कोई बैठा है, और अगर आपके साथ वो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी ओर देख कर कहें कि सुनो, तुम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो। अब किसी और की ओर मुड़कर कहो कि तुम स्वयं आत्मा हो। आप और मैं जो आत्मा हैं, हम इस शरीर नाम के एक रीति से कवर के अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर हम ढापे गए हैं। तो ध्यान देंगे हम कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम 6 वचन को फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय। वो कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आपको एक शारीरिक व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो। देखिए, कलीसिया ने बहुत ही दिनों से हमने जो है अपने आप को, अपनी पहचान को, परमेश्वर जो बताते हैं कि हमारी जो पहचान है, उससे हमने अपने आप को अलग रखा है, और हम उसे जो है नम्रता का भाव दे देते हैं। हम क्या कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम तो मिट्टी का एक कण है, और पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं। और लोग ये कहते हैं, देखिए ये कितना नम्र व्यक्ति है। दूसरे हाथ, अगर आप जाकर किसी से ये कहें कि देखो, प्रभु ने मुझसे कहा है कि उसने मुझे ज्योति बनाया है, तो मैं ज्योति हूँ। अगर किसी से आप जाकर ये कहें, अगर आप लोगों से कहें कि मैं आत्मा हूँ, तो लोग आपके प्रति चिंतित हो जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी तरह इस दुनिया ने हमें इस बात पर लाकर छोड़ दिया है कि हम आत्मिक चीज़ों से अपने आप को अलग कर चुके हैं, और हम आत्मा की भाषा को भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप आत्मा हो, इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर सकते हैं वो उनके प्रति जो मसीह में जिलाए नहीं गए हैं, उनकी तुलना में वो बहुत ही बड़े बड़े काम हैं। 7वें वचन से हम आगे फिर पढ़ेंगे। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मे हैं वो ऐसे ही हैं। ये वचन जो हमने अब पढ़े, वो जो लोग आत्मा से जन्मे हैं, एक रीति से उनके चरित्र की व्याख्या हमसे करते हैं। वो यीशु कह रहे हैं कि वो जो आत्मा से जन्मे हैं वो हवा के समान है। वो जहाँ मन किया वहाँ वो चलते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं। आपको उनका शब्द सुनाई देता है, पर आप उसे देख नहीं पाते, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी अगुवाई में। ऐसा लिखे जाने के बावजूद भी हम अपने आप को मानो उस रीति से पाते हैं जो लोग लहरों पर उछाले जा रहे हों। हम ऐसे हो गए हैं मानो लहरों पर उछाल दिए जा रहे हैं। पास्टर, अगर आप मेरे लिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें। याकूब 1 अध्याय 6 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा।
तो बात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलता है। ऐसा व्यक्ति एक जगह पर खड़ा नहीं है, मगर वो निरंतर सक्रिय है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई जिसमें विश्वास नहीं है, वो उस हवा के समान नहीं है जो बहती है। वो एक ऐसी लहर बन जाती है जो हवा के कारण उछाली जा रही है। देखिए, हवा के ऊपर कोई काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लहर जो है उस हवा के ऊपर निर्भर है जो उसे उछालती है। इसलिए वचन कहता है कि वो जिस अंदर विश्वास नहीं, वो उस लहर के समान है जो हवा के कारण उछाली जाती है। इसका मतलब चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम वो हवा बन सकते हैं जो लहरों को उछालती है, या हम वो लहर बन सकते हैं जो हवा के द्वारा उछाली जाती है। तो आप किस बात का चुनाव करेंगे? जितना ज़्यादा आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो आपकी अगुवाई करे, जब आप उन्हें अनुमति देते हैं कि वो आपको चलाए, तो आप स्थिर पाए जाते हैं, आप एक आराम की जगह में पाए जाते हैं। आपको लहरों के समान उछाला नहीं जाएगा। आप अपने पैसों को लेकर चिंतित नहीं होंगे, आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होंगे, आप अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित नहीं होंगे। इसीलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 कहता है कि वे लोग जिनमें विश्वास की कमी है, वे लोग जिनको अपने भविष्य की चिंता है, आने वाले कल की चिंता है, वो उन लहरों के समान होंगे जो हवा से उछाले जाएंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो स्थिर नहीं पाए जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो आत्मा के अनुसार चलता है, उसकी अगुवाई में चलता है, वे लोग ऐसा होने नहीं देंगे कि इस संसार की चिंताएं, इस संसार का भय उन्हें छू भी पाए, क्योंकि वो आत्मिक लोग हैं, वो आत्मा है और स्वर्गीय बातों की उन्हें ज़्यादा परवाह है। उन्हें इस बात की परवाह ज़्यादा है कि क्या वह स्वयं परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह ज़्यादा है कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग मेरे घर में उतर आए। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्ग मेरे विवाह में उतर आए। उन्हें इस बात की चिंता ज़्यादा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि स्वर्ग मेरे बच्चों के जीवन में ज़्यादा नज़र आने पाए। उनके लिए सारी चीज़ें स्वर्गीय होती हैं, आत्मिक होती है। इन बातों को मैंने बुधवार के दिन बहुत गहराई से, बारीकी से आपके साथ बांटा था। मैं आपसे कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग से निरंतर जुड़ा हुआ है, उसे उन्हीं बातों का स्वाद जचता है। आज वही बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात तय है कि उनके लिए सारी बातें जो हैं एक तरीके से स्वर्ग की भाषा में नज़र आते हैं, उसी भाषा को दर्शाते हैं। क्योंकि आप आत्मा में हैं, आप आत्मा में देखना शुरू करते हो, आप आत्मा में सुनना शुरू करते हो। ऐसा हो, ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का आत्मा एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करे, खड़ा करे, जो केवल ज्ञान से भरी हुई बातों के कारण अगुवाई में न जाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाए। ऐसा हो कि आप आत्मा में पाए जाएं। इस हफ्ते ऐसा होने पाए कि पवित्र आत्मा आपको लिए चले। इस हफ्ते ऐसा होने पाए कि आपके प्रार्थना का जीवन का स्तर ऊंचा हो जाए। इस हफ्ते ऐसा हो कि पवित्र आत्मा आपको लिए चले। इस हफ्ते ऐसा हो कि स्वर्गीय बातें आप पर जाहिर किए जाएं। इस हफ्ते ऐसा हो कि आपके दर्शनों का स्तर भी ऊंचा हो जाए, आपके दर्शन बढ़ें, आपके स्वप्न बढ़ें, आपके जीवन में प्रभु की करीबी और बढ़े, आपके जीवन में नम्रता और बढ़े। प्यारो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। हाँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर मानो पवित्र आत्मा से एक नई ऊर्जा को पा रहा है। मैं जानता हूँ कि ये वचन
किसी के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि ये वचन आपके घर में परिवर्तन ला रहा है। मैं जानता हूँ कि ये वचन आपके घरों को, परिवारों को मानो पूरी तरह से डुबो रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को उसके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को इस मौके के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को उसके स्थिर कायम रहने वाले प्रेम के लिए। वो प्रेम जो कभी हारता नहीं, वो प्रेम जो कभी बदलता नहीं। आप ही हो जिसे अब बदलना है। इस बात का इंतज़ार न करें कि प्रभु का हाथ आपको ढूंढे, आप उसके हाथ की खोज करें। उसके महान हाथ के नीचे आप आ जाएं। शमारियन तोरोबोदो। मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक इस वक्त और भी बढ़ रहा है और मैं ये समय आपके लिए प्रार्थना करते हुए बिताना चाहता हूँ। चीज़ें होनी शुरू हो जाए आपके लिए। शखत्रोनोनोमोसी अंतरवा। प्रभु आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु अपने मुंह को खोल कर प्यारो प्रार्थना करना शुरू करें। कोई अपने मुंह को खोल कर कहे, प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने शरीर का इनकार कर सकूं, उस पर काबू कर सकूं। मैं अपने शरीर की लालसाओं की भूख को नहीं पूरा करूं और आपके साथ आत्मा में जुड़ा हुआ रहूं। मेरी आत्मा एक महान जागृति को देखने पाए। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाऊंगा। मेरी आंखें खोल दी जाएंगी, मेरे कान खोल दिए जाएंगे। इस पृथ्वी पर मैं प्रभु के साथ काम करूंगा। इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करूंगा, यीशु के महान नाम में। आमीन। हमारा प्रभु इस बात का इंतज़ार करता है कि हमारी पीढ़ी उठ खड़ी हो जाए। ये समय आपका है। मैं कह रहा हूँ, ये समय आपका है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहे हैं। हाँ, धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा कई घरों में इस वक्त कार्य कर रहे हैं। कई घरों में लोग इस वक्त अपने घर की ज़मीन पर परमेश्वर के सामर्थ के तले गिरे हुए हैं। कोई कहे आज कि प्रभु मैं यहाँ हूँ। कोई टाइप करे इस बात को कि प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ। प्रभु अगर आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो आप मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद प्रभु। वाह। शखारियन ठथारबा शबारियन ठथेरबासी अंतोरबो शदेरनमासी अंतोरबादिया। प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ आपकी आराधना करने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ अपने सिर को झुकाने के लिए। मैं आया हूँ यहाँ ये कहने के लिए कि आप, केवल आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु आप कितने प्यारे हैं, आप कितने विश्वास योग्य हैं। मेरे लिए आप ही सबसे ज़्यादा अद्भुत हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत आशीषित हैं। आज वे लोग जिन्होंने अपने अर्पण और दशांश प्रभु के भंडार में लाए हैं, आपके ऊपर मैं आशीष की घोषणा करना चाहता हूँ। पिता, जैसे आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, पवित्र आत्मा उनके अर्पणों को आप ग्रहण करें, उनके देने को आप ग्रहण करें। ऐसा होने पाए कि वे बड़ी आर्थिक विजेताओं को देख सके। धन्यवाद प्रभु। आपके अनुग्रह को मैं मुक्त करता हूँ उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों पे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज की इस सभा के लिए मैं प्रभु का बहुत ऋणी हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा तृप्त महसूस करता हूँ। मेरी निवेदन है आपसे कि इस सभा के बाद थोड़ा समय परमेश्वर के साथ ज़रूर बिताएं, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इस संदेश को दोबारा से सुनें, और बुधवार के दिन प्रभु की इच्छा हो तो मैं दोबारा आपसे मिलना पसंद करूँगा।
और उसके बाद फिर अगले इतवार को। अगर आपने इस वीडियो से आशीष पाई है तो ज़रूर इसे किसी के साथ बांटें, शेयर करें। ये वीडियो अलग अलग भाषाओं में, भाषांतरों में उपलब्ध किया जा रहा है। अगर आपको कोई व्यक्ति पता है जो उस भाषा को बोलता है, जिनमें भाषांतर उपलब्ध है, उनके साथ वीडियो ज़रूर बांटें। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपको पुरस्कार दे। तो जब तक अगली बार हम मिले, हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब वापस आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम अपने आप को उसके आने के लिए तैयार करेंगे। तब तक अपने आप को परमेश्वर के महान हाथ के नीचे बनाए रखें। प्रभु आपको आशीषित करे।